Hello students, we have discussed about the in our last lecture Legionella, and now in this video we are going to discuss about our next member, that is the Sphenopsida class, and that member will be Equisetum. So firstly we should know that about the features of this class. So Sphenopsida class silent features. If we talk about their distribution, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस साइंटिस्ट ने इनको क्या क्या नाम मेंशन कर रखा है। जैसे कि स्फेनोप्सिडा क्लास ऑल्सो कॉल्ड एज आर्थ्रोफाइटा बाय बेंसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम आर्थ्रोफाइटा रखा। कैल्मोफाइटा बाय स्मिथ इन 1955। तो इस क्लास के अंदर जो एक लिविंग मेंबर बचा था वो केवल एक क्या था, इक्विसेटम था, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। Equisetum comprises only 25 species. The group flourished during the Paleozoic era. Now, Paleozoic era and Devonian period all are parts of Carboniferous period. Carboniferous and Devonian period both are part of Paleozoic era. Paleozoic era comprises 541 to 251 million years ago. In between the Devonian period and Carboniferous period both occurs. So Paleozoic era के अंदर इनके जो अमाउंट थे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गए थे। हाइमा एंड कैल्मोफाइटा जो एक टाइप हैं, जो मेंबर हैं इस फैमिली के, वो क्या हैं, हाइमा एंड कैल्मोफाइटा। कैलामिटीज़ जो हैं कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर बढ़ गए थे, और कार्बोनिफेरस पीरियड की अगर एज की बात करें तो वो है 358 मिलियन ईयर्स एगो। फिर हम बात करते हैं इनके स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्पोरोफाइट हम पहले जब ब्रायोफाइट्स में पढ़ा हमने, अभी लास्ट हमारे लेक्चर था जिसमें हमने स्लेजिनेला के बारे में पढ़ा, हमने स्टेम रूट इन सब के बारे में पढ़ा। तो स्पोरोफाइटिक जो स्ट्रक्चर है वो डिवाइडेड होती है स्टेम, रूट एंड लीव्स के अंदर। अब यहाँ पर जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है वो डिप्लॉइड स्टेज होती है और डोमिनेंट स्टेज होती है। प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। अगर हम नोड इंटरनोड की बात करें तो जब हम स्टेम में देखते हैं, दिस इज द नोड एंड between the part between two nodes is known as internode. So there is a presence of node and internodes. लीव्स की बात करें तो लीव्स सिंपल हैं, रिड्यूस्ड होती हैं एंड स्केली, मीन्स सिंपल लीव्स लाइक दैट but they reduce to form a scaly appearance, like that. This is the stem and the leaves are arranged like in spiral manner, and scaly leaves, reduced and scaly leaves are present here. Roots will be one more thing about the leaves, that is these are differentiated into fertile and sterile branches. We'll talk about that later. So roots are adventitious, means they arise from any part of the plant. That may be a root, that may be a shoot, that may be different, कोई भी एक पार्ट, प्लांट का किसी भी पार्ट से रूट का ओरिजिन होना, दैट इज एडवेंटिशियस रूट। हेयर वी हैव डिस्कस दैट द अराइज फ्रॉम ईच नोड ऑफ राइजोम इन होल। तो राइजोम का जो नोड है, राइजोम का जैसे हमारे ये नोड है, इस नोड से यहाँ पर होल में यहाँ पर रूट्स जो है वो अराइज करते हैं। स्टेम की बात करें तो स्टेम जो है प्रोटोस्टेलिक भी हो सकता है, साइफेनोस्टेलिक भी हो सकता है, इवन यूस्टेलिक इज ऑल्सो प्रेजेंट बट विदाउट लीफ गैप। सो प्रोटोस्टेलिक दैट मीन्स देयर इज नो presence of pith, absence of pith will be there. Protostelic, simple type of stele in which the xylem core is surrounded by the phloem tissue. In Siphonostele, there is a presence of pith and xylem core is surrounded by phloem tissue. This is the xylem, here the pith, and this is the phloem tissue which surround the xylem core. So secondary growth will be absent in present days. In present members of this class, the secondary growth will be absent, means there is no cambium present,
but the extinct member of this family, the secondary growth is present, like calamities that occurs in Carboniferous age. नाउ रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स मीन्स रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे दोनों टाइप के ही रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव भी है एंड सेक्सुअल भी है। अगर वेजिटेटिव की बात करें तो हमारे पास जो वेजिटेटिव टाइप होंगे वो दो ही टाइप होंगे। फर्स्ट वन विल बी फ्रेगमेंटेशन एंड द सेकेंड वन विल बी ट्यूबर्स फॉर्मेशन। Here we have discussed only this reproduction by spores because these are important. So spores will be homosporous means all the spores will be alike, एक जैसे ही होंगे। हेट्रोस्पोरस कंडीशन अगर प्रेजेंट भी थी तो वो एक्सटिंक्ट मेंबर्स में थी। एट प्रेजेंट किसी भी मेंबर के अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन नहीं मिलती है स्फेनोप्सिडा क्लास में। स्पोर्स जो है रिप्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्पोरेंजिया जो है स्पोरोफिल बियर करते हैं, स्पोरेंजिया बियर करते हैं आपके स्पोर्स को दैट एग्रीगेट इन कॉन्स एंड स्ट्रोबलाई, जैसा कि हमने पीछे स्लाइजिनेला के अंदर डिस्कस किया था। नाउ स्पोर्स से हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो कौन सी आती है, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट के अंदर हमारे सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के सेक्स ऑर्गन्स लाइक एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। और उनके बाद उन दोनों को फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे नेक्स्ट जो मेंबर बनता है वो होता है जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो, देन अगेन द स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट। सो गैमेटोफाइटिक बॉडी की बात करें तो जनरली ग्रीन होगा। एक्सोस्पोरिक ब्रांच मीन्स स्पोर वॉल से ओरिजिन होगा इनका, ब्रांच में होगा। एंड थैलस लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रोथैलस। थैलस जैसे दिखने वाली स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, प्रोथैलस। Anthrazoids are multiflagellated means there is the anthrazoid like that and there is presence of multiflagella are present. Archegonia is embedded in the gametophytic tissue. Many archegonia get fertilized in prothallus. So this is the main feature that many, एक प्रोथैलस के अंदर जहाँ हमारा आर्किगोनिया है तो उसी प्रोथैलस के अंदर एक साथ बहुत सारे आर्किगोनिया जो है वो फर्टिलाइज कर जाते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस मेंबर। नेक्स्ट जब फर्टिलाइजेशन अकर हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो जाती है जाइगोट। जाइगोट से आपका एम्ब्रियो डेवलप करेगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे रहेगा, एक्सोस्पोरिक मीन्स स्पोर के आउटर वॉल से ही हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। देयर इज अ एब्सेंस ऑफ सस्पेंसर। सस्पेंसर इज अ टिश्यू दैट helps in the development of embryo, that pushes the embryo into embryo sac. So this is all about your this Phenopsida class. I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा। In our next video lecture we will discuss about the equistetum. Okay.